Hello, hi, this is Neha Kumari. I welcome you all to the India's largest learning platform, which is An Academy. This is An Academy's channel, An Academy 8th. Let's crack CBSE 8. Okay, so today we will be talking about the possibilities of how tribals faced the problems in the British rule and who were the outsiders being referred to as डीकूज डीकूज कौन थे जो जिसको हम रेफर करते हैं एज डीकूज and how they did enslave the people of the region, how they have thrown the people of the region out of that area. Okay, and here we also will also know that how they have actually changed the lives of these tribals. ठीक है. So this is basically talking about the tribals and the Dikus. So Dikus क्या है, how they had affected the lives of tribals, that is our question in this chapter. And that here we will be also talking about one most important person, which was Birsa Munda, who was one of the person from the tribal area. Okay, so let's go for it. But before that, let me explain myself. Let me introduce myself. Hi, this is Neha Kumari. I have masters in commerce. That means I have done my graduation and post graduation in commerce from Nehu University, Shillong. I have 1 year of experience in reputed school, which is the KV school basically. I have taught class 11th and 12th. The subjects that I was teaching there was accountancy and business studies. So as you can see that I have taught senior secondary classes. Currently, I am pursuing B.Ed. ऐसा नहीं है दैट आई हैव मास्टर्स इन कॉमर्स तो मैं अपनी पढ़ाई बंद कर दूँ. आई हैव अ पैशन फॉर लर्निंग, आई हैव अ पैशन फॉर टीचिंग. दैट इज़ वाई आई हैव जॉइन अन अकेडमी. So yes, an academy gives me a platform to touch the lives of many learners. So I have talked much about myself. Let me introduce India's largest learning platform, which is an academy. Here, what do we get for you? हम आपको क्या provide करते हैं? So we give you access to unlimited live classes and recorded courses as well from India's best educators. Okay, so here on an academy, there are so many benefits that you get by joining an academy. The first one is daily live classes. Yes, we take daily live classes. It is on the live classes which are being held by the India's top educators like regularly. Okay. So here you can experience free and start learning from the best. We have so many educators who takes classes regularly on live basis. है ना? So these are India's top one of the top educators who are in this line. Those these people are there who are at the top of their work. Okay. So on an academy, what are you going to get? You are going to get India's best educators, interactive live classes, live test and quizzes. Creative corner is also there. So I will explain what is interactive live classes. That means you can interact with your educator, whichever educator you find your favorite. You can talk to them regarding the class. And जब class चल रही है तभी आप ये सवाल पूछ सकते हैं. ठीक है, and we organize live test and quizzes. Yes, we take test and quizzes on a regular basis, जिससे आपकी capabilities, आपकी interest और ज़्यादा high हो जाती है. Then we also provide creative corner, जहाँ पे we give you an extra benefit of learning new things depending upon your capabilities and interest. ठीक है, जैसे I like music, I like singing, so I can also be a part of an academy and I can join this plus sign. Okay, so you have to go for this select plus. Then what is creative corner is basically providing you. Creative corner is providing syllabus beyond school syllabus. ठीक है, यहाँ पे we also give you entertainers corner, जहाँ पे आपको magic tricks, film music, film making, ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं. Then there is orators corner, जहाँ पे हम debating, public speaking, effective communication पे भी काम करते हैं. Then book lovers corners are there, जहाँ पे आप blogging, mastering, storytelling, book club and many more. ठीक है, तो आप coding वगैरह भी सीख सकते हैं. Yes, you can also play some music in this entertainers corner. तो यहाँ पे see, I have mentioned it already. Then we also provide you a comprehensive syllabus. Comprehensive syllabus means it is not only one subject.
ठीक है. There are multiple subjects regarding your class. So since you are in class 8, so we will be providing you topics related to maths, science, English, social science, and Hindi also. And you cannot forget the thing that there are multiple educators who are taking the same subject at different time slots. So whichever time slot you are fine with, you can join their class, you can interact with them. So yes, we provide you structured courses जहाँ पे आपके courses are completed within well defined time. The revisions are taken into account. Definitely yes. Then your next thing that you get from an academy is unlimited access. Yes, one time subscription and unlimited access. You can access it wherever you want, in whatever time you want. उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है. ठीक है. So for all these benefits, what do you have to do? You have to download the app, then install it on your mobile phone. Click on the manage goals, which is CBSE class 8, and on the plus sign, because I have explained you what is the benefit of joining the plus sign. Then please get the subscription. Regarding the subscription, this is the subscription plan that is available for class 6 to 12. Anybody from class 6 to 12 can go for this benefit package. Okay, so we are providing you for 1, 6, 12, 24, 36, 60, 85 months. So currently the best plan that we have is 12 months and 24 months, because you are going to pay a very less amount, very cost effective amount, which is not at all expensive. The per month is just 938 or 1125. As you can see, if you are going for 12 months, you have to pay 13,500. And yes, we also give EMI availability is there. So per month, you just have to pay 938 rupees if you're going for 24 months, right? You can get an extra 10% off if you're using my code, which is Kumari, while getting the subscription. So yes, आपके amount में और 10% less हो जाता है. So it's a big yeses to select this, and I'm telling you this offer is for very limited period. You अगर आप इसके लिए अभी जाते हो, then it will be very effective. ठीक है, बाद में जाके तो थोड़ी expensive हो जाएगी, है ना. So what do you have to do? You just have to apply the link, apply the code, and you're good to go. Then you can also join us on the Telegram app. This is our link available, and it will be also available in the video given. ठीक है, description में भी है. So this link is basically providing you the benefit of knowing when the educator is taking the class, and when it will be rescheduled या कौन सी टॉपिक पढ़ाने वाले हैं. So this is a big yes to the Telegram app if you join it, है ना. Yes, so this is a recorded class. I'm again letting you know that this is a recorded class. तो यहाँ पे आई विल बी अवेलेबल थ्रू चैट्स. मैं आपके साथ चैट्स पे बात कर पाऊंगी. वी हैव सर्टेन आई एक्टिविटीज दैट वी हैड टू डू, सो इसीलिए हमने रिकॉर्डेड क्लासेस करी हैं. सो येस, लेट्स टॉक अबाउट today's chapter, which is tribals, decus and the division of a golden age. ठीक है, तो यहाँ पे आपने बेसिकली क्या सीखना है कि who were the outsiders, who were the decus, okay, who were the outsiders that were ruling the country, that were ruling the area, and how they had affected the lives of tribals, है ना. There are tribals in our country अभी भी. So मैंने एक फोटो, बहुत अच्छी सी फोटो लगाई है जहाँ पे मैंने दिखाया है ट्राइबल्स, बट बेसिकली दिस आर नॉट दी ट्राइबल्स फ्रॉम इंडिया. ये मैंने कहीं बाहर से निकाली है ट्राइबल की पिक्चर. ठीक है, तो इनको हम ट्राइबल इसीलिए कहते हैं क्योंकि दे आर वेरी कनेक्टेड टू दी विलेज. ये लोग अपने विलेज से बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं. सो देर आर वेरियस काइंड्स ऑफ ट्राइबल्स. ठीक है, सो हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव? सो दैट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन कि हमारा ट्राइबल ग्रुप किस तरीके से रहता था. तो ट्राइबल ग्रुप्स आपको ज़्यादातर आपको नॉर्थ ईस्ट साइड में मिलते हैं. देन वी ऑल्सो गेट इन झारखंड. Then in your hilly areas also there are tribal people. So tribal people are all over India, and they are very very important because these are the backward people and we need to bring it to the level of equality. ठीक है, इनके लिए भी हमने काफ़ी reservations रखे हैं ताकि इनकी livelihood, इनकी living style थोड़ी सी change हो जाए, है ना. So how did tribal groups actually lived before this people of Britishers came to India? So they were doing jhum cultivators.
They were known as Jhum cultivators. Some of them were hunters and gatherers, some were herding animals, and some of them had actually settled down cultivation. They were interested in cultivating. So this basically these four groups I am going to explain one by one, because this particular topics is very very important for your exam. ठीक है? सो समवेयर झूम कल्टीवेटर, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि झूमिंग होती क्या है, ठीक है? झूमिंग इज बेसिकली व्हेन यू आर कल्टीवेटिंग एट अ पर्टिकुलर प्लेस, एंड जब वहां से आपने उस पर्टिकुलर प्लेस की जो क्रॉपिंग है उसको काट के आपने उसको यूज कर लिया, देन आप उस जगह को जला देते हो, यू आर बर्निंग दैट लैंड एंड यू आर मूविंग टू सम अदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड झूमिंग. सो दैट इज वाई झूमिंग इज ऑल्सो नोन एज शिफ्टिंग कल्टिवेशन. ठीक है? ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसीलिए कहलाती है बिकॉज once the land has been harvested, then the plot is being shifted to some other place. Yani the people move to different forest land. ठीक है? So this is basically done on small patches of land. पूरे land पे नहीं होता है. There is just small patches. यानी अगर आप एक land को ऐसे समझो कि वो ऐसे बनाया हुआ है land, तो उसको ऐसे करके हमने डिवाइड करके एक पर्टिकुलर पार्ट पे मैंने किया, जूमिंग की, कल्टीवेशन किया, हार्वेस्ट किया, फिर उसको मैंने पूरी तरीके से बर्न करके देन आई हैव स्टार्टेड कल्टीवेटिंग इन दी अदर पार्ट. देन ये वाला पार्ट जब कल्टीवेशन हो गया, इसमें हार्वेस्टिंग हो गई, तब मैंने इसको भी जला दिया, मैंने इसको भी बर्न कर दिया, एंड देन आई हैव मूव टू अनदर पैच ऑफ द लैंड. So this was basically a process of giving the time of the remaining the burned land to regrow its varieties, to regrow its fertility, ताकि ये जो हमारे जो कल्टीवेशन है वो ज़्यादा आसान हो जाए. सो बेसिकली व्हाट वी हैव डन हियर, वी हैव बर्न्ड द वेजिटेशन ऑन द लैंड टू क्लियर इट फॉर कल्टीवेशन. हम लोग सबसे पहले जो कल्टीवेशन एरिया है उसको हम पूरी तरीके से बर्न कर देते. जैसे कि ये देख रहे हो आप, हम यहाँ पे बर्निंग कर रहे हैं. तो दिस बर्निंग वॉज डन फॉर फर्टिलाइजिंग द सॉइल. हम सॉइल में फर्टिलिटी लाने के लिए हम उसको बर्न करते थे, एंड दे यूज टू स्प्रेड द एशेस विच कंटेन्ड पोटैश. Potash is kind of a mineral that has been added to the burned area while spreading the ashes. जो हमारे राख बनते थे उनको हम स्प्रेड करते थे. ठीक है? एंड दिस स्प्रेडिंग ऑफ एशेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर ये एक जगह रहते हैं, जैसे आप देखोगे भी कि अगर जैसे ना हमारे घर में अगर वो अंगीठियाँ जलती हैं या कोयले जलते हैं जब ठंड का टाइम होता है, तो जो उनके बाकी के जो रिमेन्स रहते हैं ना, वो हम प्लांटेशन एरिया में हम ऐसे ही स्प्रेड कर देते हैं. दे हैड अ पोटेशियम, दे हैड अ पोटैश इन देम, सो दैट हेल्प्स इन द फर्टिलाइजिंग द सॉइल. ठीक है? तो वो सॉइल में वो उपजाऊपन लाने के लिए वी डू दैट. देन once the crop was ready and harvested, they moved to another field. इससे पहले आई लेट यू नो कि यहाँ पे क्योंकि आप सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए आप पोटैश को एशेस को स्प्रेड करते थे, तो उसके बाद जब वो पोटेशियम पूरी जगह फैल जाती थी सॉइल पे, तब उसके बाद क्या करते थे, सीड्स है ना, उन सीड्स को हम सो नहीं करते थे. यानी एक एक जगह पे वी डू नॉट हैव टू प्लांट इट, है ना, ऐसे हमने जगह खोदी उसमें डाला, ऐसे नहीं करते थे. पीपल यूज टू थ्रो इट लाइक दिस. पीपल ऐसे फेंकते थे. दे यूज टू स्प्रेड इट. सो उसको हम बेसिकली कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग. उसको हम क्या कहते हैं? ब्रॉडकास्टिंग. ठीक है? तो दिस इज बेसिकली स्प्रेडिंग ऑफ ब्रॉडकास्टिंग इज बेसिकली स्प्रेडिंग ऑफ सीड्स ऑन दी सॉइल. तो इससे क्या है, ना आपको प्लाव करने की जरूरत है, ना आपको खुदाई करने की जरूरत है, ना आपको सीड्स को सो करने की जरूरत है. इट्स जस्ट यू आर स्प्रेडिंग इट. ठीक है? सो वंस द क्रॉप वाज रेडी एंड हार्वेस्टेड, दे मूव टू अनदर फील्ड. दैट आई हैव एक्सप्लेन. वेयर डू आई मेक इट? यस, आई विल मेक इट हियर. कि एक लैंड को उन्होंने पैचेस में बांट रखा था कि वो इतने ही पैचेस को यूज करेंगे, उसको ही कल्टीवेट करेंगे, और जब क्रॉप रेडी हो जाता था, हार्वेस्ट हो जाता था, तब उसको वो जलाकर दे यूज टू शिफ्ट टू सम अदर पार्ट ऑफ द लैंड. ये
जो झूमिंग कल्टीवेशन है इट इज स्टिल एप्लीकेबल, ये अभी भी होता है. आई हैव सीन विथ माई ओन आईज. इट हैज बीन डन इन द एरियाज, हिली एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंडिया. इंडिया में भी नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, सेंट्रल एरिया में हो रहा है. बेसिकली दिस इज प्रैक्टिस बाय द ट्राइबल पीपल इटसेल्फ बिकॉज दे थिंक दैट दे आर वेरी मच रिलेटेड टू द लैंड. तो वो लैंड को छोड़ के या वो उस फॉरेस्ट को छोड़ के वो कहीं जाना नहीं चाहते हैं. दैट इज द रीजन. ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में आई हैव सीन इन मेघालय इटसेल्फ. ठीक है, मैंने मेघालय में देखा है, तो और भी कहीं कहीं होता ही होगा. तो दिस इज अ ट्रू स्टोरी. ठीक है, देन yes, so somewhere hunters and gatherers. So as you can see कि सारे तो जमीन से जुड़े हुए तो थे नहीं, कुछ ऐसे ट्राइबल्स भी थे जो जगह जगह घूमते हुए they used to hunt animals and they used to gather forest minerals and forest fruits, या जो भी उनको वेजिटेबल्स मिलते थे they used to gather it. फिर वो क्या करते थे, they used to do what, वो जब हमको ऑयल चाहिए ना पकाने के लिए, खाना पकाने के लिए तो ऑयल चाहिए, क्योंकि फायर तो चलो लैंड सॉरी फॉरेस्ट को काट कट किया, उसको पत्थर से जलाया तो वो जल गया, है ना. तो फायर तो वी हैव, बट व्हाट वाटर वी गेट फ्रॉम द रिवर्स. तो अब उन खाने को पकाने के लिए व्हाट डू यू वांट एल्स, है ना. तो वो चाहिए था ऑयल, तो वो ऑयल उन्हें मिलता था सैल या महुआ. ठीक है, oil was extracted from sal and mahua. These are some kind of uh, trees that extracts oil, that has oil in themselves. So उन इन trees को वो plant करते थे, सॉरी प्लांट नहीं करते थे, उनके पास वो रहते थे, आसपास रहते थे, वहां से वो ऑयल एक्सट्रैक्ट करके लेके आते थे ताकि उनको खाना पका हुआ मिल सके. So yes, what hunters and gatherers में we have seen that there are Khons people, Khons, हाँ, जो अभी भी उड़ीसा के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं. So these are one of the kind of tribal people who stays in Odisha, and they follow this hunting animals and gathering forest produce. ठीक है, then what do? They eat fruits and roots collected from the forest. I have already explained कि वो fruits and roots को कलेक्ट करते थे फ्रॉम द फॉरेस्ट. तो एनिमल से उनको मिल जाता था प्रोटीन, दे यूज्ड टू गेट मीट. ठीक है, बाकी जो फ्रूट्स हो गए, क्योंकि आपको वेजीज भी खानी पड़ती थी, तो वो फ्रूट्स एंड रूट्स फॉरेस्ट से कलेक्ट कर लेते. दे यूज टू स्टे, दे यूज टू मूव अराउंड दी फॉरेस्ट ओनली. वो हमेशा उनका यही काम होता था. तो वो लकड़ियां भी वो अपने कंधों पे लेके या सर पे लेके वो आते थे ताकि रात के टाइम जब ठंड हो तो उसको जलाकर खुद सेक सके. और इस वजह से वो जो लकड़ियां वो लेके भी आते थे, देयर वाज अनदर रीजन, ताकि वो खानों को पका सके. अब मीट तो आप खा नहीं सकते कच्चा, हम एकदम पुराने, हम एप्स थोड़ी हैं, हम एवोल्यूशन हुआ है ना. तो व्हाट डू वी, हम क्या करते हैं, हम खाने को पकाते हैं. वी कैन नॉट ईट रॉ मीट्स या रॉ वेजिटेबल्स हम नहीं खाते हैं. वी यूज टू कुक इट, है ना. पहले भी हम कुक करते थे ना, हम अभी भी कुक करते हैं. सो फॉर दैट, फॉर कुकिंग दे नीड टू हैव ऑयल. जो ये ऑयल उनको मिलता था सैल से एंड महुआ से. सो दीज आर द टू ट्रीज दैट यू विल रिमेंबर फॉर एवर कि इनसे ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है. So they also use many forest shrubs and herbs for medicinal purposes. तो अगर कहीं चोट लग गई, कोई बीमार है, कोई किसी को खांसी हो गई, किसी को सर्दी हो गई, then they used to get some herbs from the forest itself for medicinal purposes. तो वो उनको बहुत जानकारियां होती हैं. लेकिन ठीक है, आप ये देखोगे कि गांव वाले जो लोग होते हैं उनको हर्ब्स या उनको फॉरेस्ट श्रब्स के बारे में बहुत ज्ञान होता है. ये पत्ता मत खाओ, ये जहरीला है ना. ऐसे बहुत लोग बोलते हैं. तो एंड देवर सो मेनी सप्लाईज. तो ये जो, अगर जो लोगों को इन सब के बारे में ज्ञान होगा, दे हैव द नॉलेज, तो उनके बारे, उनसे तो ट्रेडिंग तो बनती है. तो खोन्स क्या करते थे, खोन्स आर वन ऑफ द ग्रुप जो इन प्रोड्यूसर्स या इन प्रोडक्शन के अगेंस्ट में वो कुछ चीजें सिटीज से भी ले आते थे. देन दे यूज टू डू द ट्रेडिंग हियर. ठीक है, ये बेसिकली क्या प्रोवाइड करते थे, कुसुम एंड पलाश फ्लावर्स टू कलर देयर क्लोथ्स एंड लेदर. तो ये हमारे जो खोन्स थे ये हमें दो चीज प्रोवाइड करते थे. एक था कुसुम फ्लावर्स, कुसुम एक तरीके की फ्लावर होती है, एंड पलाश. ठीक है, पलाश इज अ वेरी रेड ब्यूटिफुल फ्लावर. ठीक है, जिससे हम यूज करते हैं फॉर कलरिंग आवर क्लोथ्स एंड लेदर्स. ठीक है ना.
लेदर भी कलर होता है, आप ऐसा ना सोचे कि वो लेदर कलर नहीं होता। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन झूमिंग एंड हंटर्स एंड गैदरर्स। झूमिंग क्या करते थे, सिर्फ एक स्मॉल पैचेस पे करते थे एंड देन दे यूज टू मूव। पर हंटर्स एंड गैदरर्स हमेशा ही फॉरेस्ट में रोटेट करते थे, हमेशा ही फॉरेस्ट में मूव करते थे एंड दे हैड, वो कहीं पे कल्टीवेशन करते ही नहीं थे। दे यूज टू हंट एनिमल्स एंड दे यूज टू गैदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है, देन यस, समवेयर हंटर्स एंड समवेयर गैदरर्स में एक चीज चलती थी विच वाज बार्टर सिस्टम। अब ये बार्टर सिस्टम क्या होता है कि मान लो कि मेरे को पता है कि कुसुम फ्लावर कहाँ मिलता है, आई एम अ खोंद पर्सन, तो मेरे को पता है कि कहाँ मिलता है कुसुम फ्लावर, पलाश की फ्लावर कहाँ मिलती है। एंड बट आई डोंट नीड देम, आई नीड राइस, आई नीड दाल, आई नीड सम मोर वेजिटेबल्स टू ईट। तो मैंने क्या किया, आई सर्च फॉर सम पर्सन जिसके पास ये सारी चीजें अवेलेबिलिटी है, she has the availability. X and Y, suppose X and Y, ठीक है, तो X has rice, X has dal, X has whatever things Y needs, ठीक है, and Y has palash and Y has kusum flowers. So these people, they do what, they interchange the things, they exchange the things. So then this kind of exchange of goods and services is called as barter system. So hunters and gatherers used to do this barter system with outside people of the forest. So they also did certain odd jobs, किसी के घर का काम, कहीं पे फैक्ट्रीज में काम. So they had done certain other works as well, because ये बार्टरिंग से उतना होता नहीं था. बार्टरिंग में प्रॉब्लम क्या है ना, कि आपको जो सामान चाहिए उस सामान का सर्च करने के लिए उस किस इंसान के पास है, दैट वाज अ डिफिकल्ट जॉब, है ना. ऐसा तो क्या है कि मुझे चाहिए दाल, तो मैंने जाके मार्केट से ले आई, मैंने पैसे दिए, हो गया. तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज तब था नहीं, वहां पे ये चीजों का लेन देन होता था. तो दैट वाज द प्रॉब्लम, द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम. ठीक है, सो दे हैड टू डू सर्टेन ऑड जॉब्स इन दी नियर बाय विलेजेस, जैसे कि इंडस्ट्रीज में काम करना, देन लोड्स उठाना, देन वी से कि रोड्स बनाने का काम भी उन्होंने किया है. ठीक है, और कुछ ऐसे लेबरर्स भी थे जो दूसरों के लैंड पर एज पेजेंट्स, एज फार्मर्स काम करते थे, बिकॉज चाहिए ना, तो चाहिए ना, पेड़ तो आप काट नहीं सकते. देन but there was some group, some tribals who were reluctant to work for others. ये वो लोग थे जो जिनको दूसरों के लिए काम करना पसंद नहीं था. They didn't want to do job for other people. These were the people who are called as baigas. ठीक है, ये क्या करते थे, they said कि नहीं, we are the people of land and we will be connected with the land. हम इधर उधर नहीं जाएंगे, we will not do jobs here and there, वी विल नॉट डू जॉब्स हियर एंड देयर, और किसी के लिए हम काम नहीं करेंगे, हम हमेशा फॉरेस्ट लैंड, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स से ही काम करेंगे, वी विल नॉट गो हियर एंड देयर. ठीक है, सो दैट they have actually seen themselves as people of the forest who could only live on the produce of the forest. वो बोलते थे कि जो भी चीज हमें फॉरेस्ट या माउंटेन्स देगी, हम वही चीजें हम खाएंगे, वही चीजें उससे हम अपना जीवन बिताएंगे, बट वी विल नॉट डू एनीथिंग फॉर अदर्स पीपल. But sooner or later, they had to become dependent on traders and money lenders, because जो ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स क्या थे, बिकॉज उनको दिखता था कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस बहुत अच्छा मिलता है एंड इट इज़ वेरी गुड एंड दीज पीपल आर वेरी वेरी गुड इन देयर जॉब. तो उनको हम क्या करते थे, ट्रेडर्स आते थे, आसपास आते थे, बोलते थे कि आप हमसे ये सामान ले लो और उसकी जगह हमें ये दे दो. तो अब ये लेन देन में तो उनको तो पैसे चाहिए होते थे, तो उस टाइम पे मनी लेंडर्स आते थे और मनी लेंडर्स कहते थे कि ले लीजिए, आप हमसे पैसे ले लीजिए भैया, और आप ट्रेडिंग कीजिए. तो दे सर्टेनली दे उनको बहुत टाइम लगा समझने के लिए कि ये जो ट्रेडिंग का जो प्रोसेस है उसमें वो फंस चुके हैं, क्योंकि लोन देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं मनी लेंडर्स, और रीपे भी तो करना है. रीपे करने में लोगों का हालत खराब हो जाता था. ठीक है, तो दैट वे दे हैड कॉज्ड एन इंक्रीज इन देयर मिजरी. उनकी जिंदगी खराब हो चुकी थी. अगर वो सिर्फ फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे डिपेंडेंट होते तो कम से कम किसी के लाइबिलिटी तो नहीं होती, या किसी के अंदर मतलब अंडर तो नहीं होते. दे बिकॉज ऑफ दिस मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स, दे उनको किसी
कई लोगों के अधीन होना पड़ा था। अधीन का मतलब है किसी का स्लेव बनना या किसी का बोरोवर बनना, है ना। चलो, तो next we'll have some herded animals. So some tribals, they started herding peoples, they started taking care of peoples, sorry not peoples, I mean to say animals, sorry. इसका मतलब है कि वो एनिमल्स को हर्ट करते थे, एनिमल्स को पालते थे। पालतू, जो हम कहते हैं ना पालतू जानवर, वो सारी चीजें वो पालते थे। जैसे दे यूज टू हर्ड शिप्स, कैटल्स, गोट्स, है ना, ये सब, ताकि इनसे उनको खुद को भी मिले, मीट भी दे, उनका यूज हो जाए, उनका दूध, उनका कॉटन, उनका जो सिल्क है वो सब भी यूज हो जाए। एंड ऑन द अदर हैंड वो दूसरी जगह मूव भी करते थे। ठीक है, सो दे हैड लिव्ड बाय हर्डिंग एंड रियरिंग एनिमल्स, यानी बेसिकली दे यूज टू टेक केयर ऑफ एनिमल्स, एंड एनिमल्स के वो जनरेशंस का टेक केयर करते के साथ साथ उसका यूज भी करते थे। दे आर बेसिकली कॉल्ड एज पेस्ट्रोलिस्ट। ठीक है, इनको पेस्ट्रोलिस्ट कहा जाता है। वो मूव्ड विद देयर हर्ड्स ऑफ कैटल या शिप। कैटल्स के साथ जैसे आप देखोगे कि दिस पर्टिकुलर मैन इज मूविंग अराउंड विथ सो मेनी कैटल्स, है ना। ये आपको दिख रहा है कि वो कितने सारे, आई थिंक दीज आर काउज ओनली ना। ये काउस को लेके चल रहा है, इनको एक लाइन में लेके चल रहा है। एंड एनिमल्स आर वेरी वेरी डिसिप्लिन। ठीक है, अगर आप उनको एक लाइन में कर दोगे ना तो वो उस लाइन को ही फॉलो करते हैं, दे डोंट मूव हियर एंड देयर। सो पीपल लाइक पेस्ट्रोलिस्ट, लाइक वन गुज्जर्स ऑफ द पंजाब, लाबादीज ऑफ आंध्र प्रदेश वर कैटल हर्डर्स। ठीक है, so these are called one Gujjars. Okay, it's not van, it's one. Gujjars of Punjab, Labadis of Andhra Pradesh were cattle herders. So they used to do this kind of job. ठीक है ना। फिर ये दूसरी तरफ हमारे हैं गड्डीज ऑफ कुल्लू, जो शेपर्ड्स थे, जो शिप की देख रेख करते थे। एंड देयर वर सर्टेन बकरवाल्स जो कश्मीर से थे, एंड दे यूज टू रियर गोट्स। वो गोट्स की देख रेख करते थे, गोट्स की हर्डिंग एंड रियरिंग करते थे, है ना। बट व्हाट वाज द बेनिफिट ऑफ पेस्टोरलिस्ट वाज, वो एक जगह पे रहते नहीं थे। दे यूज टू मूव अराउंड बिकॉज दे वर हर्डिंग कैटल्स एंड शिप्स एंड एनिमल्स, दे वर रियरिंग एनिमल्स। तो एनिमल्स तो यार ऐसे जो ये क्या बोलते हैं, वेजिटेरियन एनिमल्स जो होते हैं, नॉट कार्निवोरस। ठीक है, ये कार्निवोरस तो है नहीं, ये तो सारे घास फूस खाने वाले हैं। तो ये जो घास फूस खाने वाले लोग थे, मतलब लोग इन द सेंस एनिमल्स, ये जो घास फूस खाने वाले एनिमल्स थे, बिकॉज ऑफ देम दे हैड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बिकॉज ये अगर आप अगर सोचो, ये एक पैच ऑफ लैंड है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे घास है, बहुत सारे घास, और एक साल तक वो वहीं पे रहे, तो ये घास तो खत्म हो जाएगी ना। बिकॉज दे आर गोइंग टू ईट 2 times a day एटलीस्ट। ये जो एनिमल्स हैं ये तो 2 times एटलीस्ट तो खाएंगे ना। तो ये खत्म हो गया। तो अब खत्म हो गया तो कहीं और प्लांटेशन चाहिए, कहीं और कल्टीवेशन चाहिए। देन these pastoralists used to move from one land to another, taking all their herds along with। ठीक है, खत्म होने से पहले उनको पता चल जाता था कि भैया ये तो खत्म होने वाला है, so we had to move। So that is what I have said, that when the grass in one place was exhausted, they moved to another place। So that is how they had to move around, that is why it is called pastoralists, because they were moving because of their animals। ठीक है ना। Next, last one, like what tribals had done was they had took to settled cultivation। some of the some of the tribals had actually settled down to cultivation। they came to know how to do cultivation। उनको पता चल गया कि फार्मिंग कैसे कर सकते हैं। they began to settle down and cultivating their fields is my yes, and they cultivated their fields in one place year after year instead of moving। So basically these are those tribals जो move करना बंद कर चुके थे। they were at a place, they were cultivating like normal people। ठीक है, they were also normal people, but their lifestyle was not normal। वो इधर उधर से जाना है, that is very very difficult job। पर ये क्या करते थे, they used to
तो पहले ये जो एक ऐसी ट्राइबल ग्रुप थी जो कल्टीवेशन पे विश्वास करने लगे. सो देन देयर वाज अ ग्रुप विच वाज नोन एज मुंडाज ऑफ छोटा नागपुर. छोटा नागपुर इज इन कहाँ पे है, कोई बताएगा? अलबेट, हाँ. छोटा नागपुर इज इन बेसिकली योर दिस झारखंड. ठीक है. And yes, it's in Jharkhand. Chota Nagpur is in Jharkhand. So uh, they had acquired the land as a whole. These people were very good. ठीक है. उन्होंने क्या करा? उन्होंने देखा कि we are starting to settle down. So let's take the authority of the land as a whole. They became the landlord of that particular land. And जो members उन all members were regarded as descendants of the original settlers. तो बेसिकली मुंडास हैव कॉल्ड देमसेल्व एज ओरिजिनल सेटलर्स, कि वो कहते थे कि हम यहाँ सबसे पहले आए थे, हम यहाँ सबसे पहले रहे, तो हमारे बाद जितने भी डिसेंडेंट्स होंगे, डिसेंडेंट्स का मतलब होता है कि जो उनके बाद जो लोग आए, उनको जो मेंबर्स जो बाद उनके आए उनको वो कहते थे डिसेंडेंट्स. ठीक है. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज मेंबर्स. दीज मेंबर्स वर called as descendants and original settlers were mundas. So mundas has become our ओरिजिनल सेटलर्स. तो उनमें से अब सारे तो राजा या रानी नहीं बन सकते थे, सारे तो चीफ्स नहीं बन सकते थे, तो सम बिकेम चीफ्स. चीफ्स आर बेसिकली योर सरदार्स. ठीक है. कुछ लोग सरदार्स बने एंड द अदर्स वर कॉल्ड एज फॉलोअर्स. ऐसा नहीं होता कि एक हमारे पास लीडर होता है और बाकी सब उसके फॉलोअर होते हैं. ठीक है ना. तो ये हमारे बन गए थे चीफ्स एंड फॉलोअर्स. So some of the examples, some extra example that I'll be telling you here is Gonds and Santhals were also one of the group who believed in settled cultivation. These Gonds and Santhals are again your one of the part of the tribal people. So these are also called as tribal people. ठीक है. देखो ये ना, ये मुंडाज हैं. ठीक है ना. ये मुंडाज की लेडीज हैं जो एक्चुअली कुछ डांस करने वाली हैं. उनका डांस का नाम. So yes, basically what this was the only topic that I was going to uh, complete with this special class. कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ट्राइबल पीपल की लाइफ कैसी थी, पहले कैसी थी. ठीक है. बिना ब्रिटिशर्स के आए पहले कैसी थी. तो सम वेर झूम कल्टिवेटर्स, सम हैव स्टार्टेड हर्डिंग एनिमल्स, some were doing some were pastoralists, and some were इन्फ्लुएंस्ड बाय दी कल्टीवेशन, है ना, सेटल कल्टीवेशन. तो उसमें मैंने आपको सबके अलग अलग बताए हैं कि कौन कहाँ रहता था, है ना. तो जैसे आप एक चीज देख सकते हो, आई लेट यू नो कि कुछ झूमिंग कल्टिवेटर्स थे, कुछ हंटर्स एंड गैदरर्स थे, कुछ लोगों ने एनिमल्स हर्ट करा था, एंड सम हैव बिलीव्ड इन सेटल्ड कल्टीवेशन. ठीक है ना. सो अब क्वेश्चंस करते हैं. क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो what is known as the method of sowing seeds in झूम कल्टीवेशन. झूम कल्टीवेशन में सीड्स को जब हम सो करते हैं, सीड्स को जब हम बोते हैं, तब हम उनको क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया था द आंसर इज ब्रॉडकास्टिंग या स्कैटरिंग. इसको हम ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं या स्कैटर करना. बेसिकली इट इज लाइक थ्रोइंग दी सीड्स. दैट दिस throwing of seeds is called as broadcasting या scattering. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन, स्टेट ट्रू और फॉल्स. झूम कल्टीवेटर्स प्लाउ द लैंड एंड सो सीड्स. क्या झूम कल्टीवेटर्स ऐसा करते थे? दे यूज टू प्लाउ द लैंड एंड सो सीड्स. वो भैया, झूम कल्टीवेशन इज अबाउट बर्निंग द लैंड, बर्निंग द हार्वेस्ट एंड मूव. So they were not doing plowing the land या so seeds. So can you say कि is it true या false? क्या होगा इसका जवाब? I'll let you know again कि झूम कल्टीवेटर्स होते कौन है. झूम कल्टीवेटर्स बिलीव्ड इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी कि वो एक पैच ऑफ लैंड पे काम करते थे,
उस लैंड को वो क्लियर करने के लिए सबसे पहले उसमें आग लगा देते थे। देन वो जब लैंड क्लियर हो जाती थी तब उसके जो एशेस से उसको स्प्रेड कर देते थे, उसको क्लियर कर देते थे, एंड देन दे यूज टू सो दी सीड्स बाय यूजिंग द मेथड ऑफ स्कैटरिंग। सो इसका मतलब वो प्लाउइंग करते ही नहीं थे, दे डिडंट डू द plowing and sowing of seeds. So the answer to it is false. तो इसका मतलब क्या है कि झूम कल्टिवेटर्स प्लाउइंग ऑफ लैंड एंड सोइंग ऑफ सीड्स दे डिडंट डू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। cocoons cocoons were bought from the santhals and sold by the traders at 5 times the purchase price। अभी मैंने आपको बताया ये संथाल्स जो थे, संथाल्स हमारे कौन थे पता है आपको? ये वो लोग थे जो सेटल कल्टीवेशन लाइक मुंडास थे, वैसे ही संथाल्स भी थे। दे यूज टू ग्रो कुकून्स। कुकून्स इज बेसिकली जो कॉटन होती है ना, कॉटन के छोटे छोटे, कॉटन इज अ फ्लावर, पहले वो फ्लावर में आती है एंड उसके बाद वो एकदम ऐसे इतनी छोटी छोटी, आई लेट यू नो कि इतनी छोटी छोटी रहती है वो। तो इट द शेप ऑफ इट इज लाइक अ कुकून। ठीक है, कुकून क्या होता है बेसिकली आप बता सकते हो? जब वो कैटरपिलर होता है, वो कैटरपिलर जब वो छोटा एकदम बेबी होता है तब वो एक कुकून के शेप में होता है, एकदम छोटा सा होता है, एकदम छोटा सा। ठीक है, सो दीज वर कुकून्स, वो संथाल्स ग्रो करते थे बेसिकली। सो दीज वर बॉट फ्रॉम द संथाल्स एंड सोल्ड बाय द ट्रेडर्स एट 5 times द परचेज प्राइस। क्या ऐसा होता था? दीज वर सेलिंग एंड मतलब मैंने आपको बताया है ना कि ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स वेर ऑल्सो एंटरिंग द ट्राइबल एरियाज, जहाँ से वो सामान खरीदते थे उनको देते थे। पहले बार्टर सिस्टम करा उन्होंने, फिर उसके बाद उन्होंने एक्चुअली पैसे का लेन देन भी करना शुरू कर दिया था। सो द आंसर टू इट इज ट्रू और फॉल्स। द क्वेश्चन इज दैट इज इट ट्रू या फॉल्स? द करेक्ट आंसर इज इट इज ट्रू। हाँ, संथाल से कोकून्स खरीदे जाते थे एंड उनको बेचा जाता था 5 times दी परचेज प्राइस। सपोज परचेज प्राइस इज ₹10, 10 रुपए में उन्होंने एक कुकून खरीदा, उस कुकून को वो बेचते थे। दे यूज टू सेल इट एट, आ गया बेटा, दे यूज टू सेल इट, मल्टीप्लाई दिस बाय 5 times, 5 times आप करो एंड देन यू गेट ₹50। तो इसका मतलब जो ट्रेडर्स थे दे यूज टू सेल द कुकून्स 5 times हायर देन व्हाट दे हैव बॉट फॉर। मतलब 5 गुना ज्यादा। कैन यू बिलीव इट? अगर मैंने ₹1 में 1000 कुकून्स मैंने खरीदे, तो मैंने 5 रुपए में मैंने 5000 खरीदे, बट मैं उनको जब बेचने जा रही हूँ आई एम सेलिंग इट एट 5 into 5 कितना होता है 25, यानी मैं 25,000 रुपीज का प्रॉफिट, 25,000 रुपीज में मैं बेच रही हूँ। सो कैन यू बिलीव इट कि 25 में से सिर्फ मैंने 5 रुपए दिया, 5,000 रुपीज दिया मैंने एंड आई एम मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 20 रुपीज। माई गॉड! सो मतलब मैं 20,000 रुपीज का प्रॉफिट कर रही थी। द ट्रेडर्स दे वर अर्निंग फॉर्च्यून। आई एम टेलिंग यू ना, ये जो ब्रिटिशर्स थे दे वर वेरी स्मार्ट, दे वर वेरी गुड एट इट। ठीक है, आई होप यू डिड लाइक माई क्लास, टूडेज क्लास। ठीक है, एंड इफ यू लाइक माई क्लास प्लीज हिट अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डोंट वरी, आफ्टर सम after this or 2 or more class, I will be taking live classes where I will be explaining your doubts and queries lively। ठीक है, मैं लाइव आके उनके करूंगी एंड डेफिनेटली इस पे अगर मैंने आज मेंटी नहीं कराई है तो इसलिए नहीं कराई है क्योंकि बेटा ये एक रिकॉर्डेड क्लास है। मैं इसकी मेंटी जरूर कराऊंगी। देयर विल बी अ रिवीजन ऑन दिस चैप्टर एज वेल व्हेन आई एम बैक। ठीक है ना? तो टिल देन प्लीज टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब दी Unacademy app, and while subscribing it you can use my code which is Kumari, so that you can get a 10% discount। and I'll let you remember कि मैंने कुछ स्पेशल क्लासेस भी करी हैं ऑन दी ऐप। आप देख सकते हो, मैंने कुछ क्लासेस, स्पेशल क्लासेस की शेड्यूल आपको पता चल जाएगी कि मैं कब ले रही हूँ, ताकि आप वो स्पेशल क्लासेस भी ज्वाइन कर सको। एंड दिस स्पेशल क्लासेस विल नॉट इंक्लूड दीज काइंड ऑफ चैप्टर्स। हम कुछ अलग चैप्टर्स करेंगे एंड वो चैप्टर्स की रिवीजन होगी या नहीं होगी ये मैं आपको नहीं बता, इट डिपेंड्स ऑल अपॉन द टाइमिंग। ठीक है ना? सो डू hit a like, share and subscribe। if you don't understand anything, I am present on the chat। मैं chat में आपके साथ रहूंगी। please feel free to ask me questions। ठीक है, take care, bye bye, good night।